بتائیں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے فیصل آباد کے بس اڈے بند، لوکل روٹس کے سوا دیگر اضلاع کی بسوں کا پہیہ جام، ٹوبہ، سمندری، گوجرا اور دیگر تحصیل کے مسافروں کے لیے بسیں رواں دواں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فصیح نقوی کی اس رپورٹ میں۔ امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہری اڈے بند کر دیے گئے۔ صرف چھوٹی تحصیلوں میں گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری۔ مسافر سفر کرنے کے لیے خوار، دھکے کھاتے شہری بھی پھٹ پڑے۔ بولے بس میں کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں لیکن روانہ نہیں ہوتی، فیملی کے ساتھ اڈوں پر قید ہو گئے ہیں۔ لوکل ہی جا رہی تھی، لوکل ہی جا رہی ہے، لیکن لانگ روٹ کے لیے نہیں لانگ روٹ بند ہے۔ شہریوں کو بھی خاصی مشکلات تو دقت کافی ہے، اس لیے تو بہت مشکل ہے کافی۔ یہی جو ہے وہ گھنٹے سے کھڑی ہو، جب تک سواریاں نہیں بدلے تو نہیں چلے گی۔ ایسی ہے نا، ہماری فیملی ہے، کافی دیر کی ویٹ کر رہی ہے، نہیں پتا بس جا رہی ہے ابھی تک۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال قومی شاہراہیں اور موٹر ویز کو بند ہی روک دی گئی۔ شہریوں کو متبادل راستے استعمال کرنے کی ہدایت۔ ایک جانب موٹر وے بند تو دوسری جانب بس اڈوں پر شہری خوار ہو رہے ہیں۔ کیمرامین اشفاق بخاری اور ساتھی رپورٹر عمران جا کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ موٹر وے کی بندش کے بعد بڑے شہروں کو جانے والی ٹریفک بھی بند رہی۔ مسافروں کی مشکلات میں اضافہ، پرائیویٹ گاڑیوں پر مہنگے داموں اپنی منزل پر پہنچنے پر مجبور۔ جھنگ چنیوٹ میں اہم چوک چوراہوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ شہر کے خارجی راستوں کو رکاوٹیں لگا کر بند کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بندش کے بعد جھنگ سے بڑے شہروں کو جانے والے ٹریفک بھی بند ہو گئی۔ فیصل آباد، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور کو جانے والی ٹریفک بند ہونے کے باعث مسافروں کو مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ لاری اڈا سمیت دیگر بس سٹینڈ سے بھی کوئی گاڑی کسی شہر کو نہ جا سکی۔ مسافر پرائیویٹ گاڑیوں پر مہنگے داموں اپنی منزل پر پہنچنے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جلد از جلد موٹر وے کی بحالی کو یقینی بنایا جائے۔ لاہور یا فیصل آباد جانو سر، آپ کے سامنے سارے اڈے بسز بند پڑی ہیں۔ اب اپنی اسپیشل گاڑی کروانے جانا پڑتا ہے، وہ ڈبل ٹرپل کرایہ۔ اب کوئی نہیں بھی افورڈ کر سکتا، وہ بیچارہ کیا کرے؟ کسی کا مریض، کسی کا کچھ ہے، سارے راستے بند ہیں، سارے اڈے بند ہیں، اب ہم کیا کریں؟ چنیوٹ شہر میں امن و امان کی صورتحال، اہم چوک چوراہوں پر پولیس موجود رہی۔ پل دریائے چناب ٹریفک کے لیے بند رہا۔ شہر کے خارجی راستوں کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا۔ دریائے چناب پل بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہی۔ لاری اڈوں سے لاہور، اسلام آباد جانے والے ٹرانسپورٹ مکمل بند رہی۔ راستے بند ہونے سے مسافر پریشان ہوئے، جبکہ چنیوٹ سے پنڈی بھٹیاں، بھوہانا، سرگودا، جھنگ تک ٹرانسپورٹ بحال رہی۔ اب آپ کو بتائیں فیصل آباد پولیس امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف متحرک۔ سی پی او کامران عادل کا لاری اڈے کا دورہ، ایم پی اے بشارت ڈوگر، حسنین اور اکرم کو حراست میں لے لیا۔ پی ٹی آئی کارکنانوں کی ہوشیاری بھی کام نہ آئی، باراتیوں کی شکل میں جاتے 72 کارکنوں کو دھر لیا۔ ادھر دریائے چناب پر پل بند ہونے سے اصلی باراتی پھنس گئے، بارات ہال تک بھی نہ پہنچ سکی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اما کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے فیصل آباد پولیس متحرک۔ سی پی او کامران عادل کا لاری اڈے کا دورہ، صورتحال کا جائزہ لیا۔ پولیس اہلکاروں کو امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کی ہدایات۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور امن عامہ میں خلل ڈالنے پر گرفتاری۔ امن و امان کی خلاف ورزیوں پر ایم پی اے بشارت ڈوگر گرفتار۔ عبداللہ کالونی سے حسنین اور اکرم کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ فیصل آباد میں پی ٹی آئی کارکنان کی پولیس کو چکمہ دینے کی کوشش، باراتیوں کی شکل میں جاتے 27 کارکنان کو پولیس نے دھر لیا۔ کارکنان پھولوں سے سجی گاڑیوں میں باراتیوں کی شکل میں جا رہے، پولیس نے تلاشی لی تو شناخت پی ٹی آئی کارکنان سے ہوئی۔ چنیوٹ میں دریائے چناب پل بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، باراتیوں کو بھی دشواری کا سامنا۔ سرگودا سے آنے والے دلہے کا کہنا تھا کہ کئی گھنٹوں سے ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، ہال تک نہیں پہنچ سکے۔ ہم سرگودا سے آ رہے ہیں، بہت خوار ہو کر آ رہے ہیں، راستے بند کیے ہوئے ہیں حکومت کی جانب سے، جو یہ چل رہا ہے صحیح ہے پی ٹی آئی والوں کا، تو لیٹ ہو گئے ہیں بہت زیادہ، فون آ رہے ہیں پیچھے ان سے، میرج ہال والوں سے۔ اہم شاہراہیں بند ہونے سے لوڈرز اور ڈمپرز کی بھی لمبی قطاریں لگ گئی۔ اور اب کچھ بات مہنگائی کی تو فیصل آباد میں سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، کچھ سبزیاں سستی اور کچھ مہنگی ہوئی، مگر عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ منافع خوروں نے عوام کی جیب پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں ہفتہ بھر پھل اور سبزیوں کے نرخ اوپر نیچے ہوتے رہے۔ سبزیاں مہنگی ہوئی تو گراں فروشوں نے اور مہنگائی کر دی۔ آلو ایک ہفتے میں 10 روپے سستے ہو کر 120 کلو مقرر، بازار میں 140 روپے کلو فروخت۔ پیاز 18 روپے سستا ہو کر سرکاری قیمت 122 جبکہ بازار میں 150 روپے فروخت ہوتا رہا۔ ٹماٹر 10 روپے سستا، سرکاری قیمت 170 روپے جبکہ بازار میں 220 روپے کلو دستیاب۔ ادرک کی قیمت 475 مقرر کی گئی، بازار میں 600 روپے بکتے رہے۔ لہسن 10 روپے مہنگا ہو کر سرکاری قیمت
कीमत 680 रुपए मुकर्रर, जबकि बाजार में 800 रुपए किलो में फरोख्त होता रहा। सब्ज मिर्च 5 रुपए महंगी 125 रुपए मुकर्रर, बाजार में 140 रुपए फरोख्त होती रही। फूल गोभी 5 रुपए सस्ती, सरकारी कीमत 80, जबकि बाजार में 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही। बैंगन एक हफ्ते में 20 रुपए सस्ते हुए, सरकारी कीमत 57 रुपए मुकर्रर, बाजार में 90 रुपए किलो फरोख्त किए जाते रहे। मटर एक हफ्ते में 15 रुपए किलो महंगे, सरकारी कीमत 200, जबकि बाजार में 250 रुपए फी किलो में बिकते रहे। करेला एक हफ्ते में 35 रुपए किलो सस्ता, सरकारी कीमत 105 रुपए मुकर्रर की गई, जबकि बाजार में 130 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं हुकूमत रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाए ताकि सस्ते दामों सब्जियों की फराहमी मुकम्मल बनाई जा सके। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में ब्रायलर ने एक बार फिर ऊपर की जानिब परवाज कर ली। चिकन की नई कीमत 468 रुपए फी किलो हो गई। अंडे भी मुसलसल महंगे 345 रुपए दर्जन तक पहुंच गए। सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। शहरी कहते हैं आलू हो या प्याज, कोई चीज भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। रेट लिस्ट पर अशिया की रेट कुछ और है, मार्केट में कुछ और है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। झंग में चिकन की कीमत में मामूली तब्दीली, 468 रुपए किलो पर मुस्तहकम। अंडे 2 रुपए इजाफे के बाद 345 रुपए दर्जन पर पहुंच गए। मछली के नर्ख 510 से 610 रुपए किलो के माबैन तय पाए। नए आलू की कीमत में 5 रुपए का इजाफा, नई कीमत 135 रुपए किलो मुकर्रर। प्याज की कीमत में 20 रुपए कमी, 145 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई। टमाटर 20 रुपए इजाफे के बाद 180 रुपए किलो तय पाए। शकरकंदी 30 रुपए सस्ती होकर 80, जापानी फल 40 रुपए महंगा 320 रुपए किलो मुकर्रर हो गए। मार्केट कमेटी के नर्ख सिर्फ दिखावे के रह गए। सब्जियों और फलों की कीमतों में रद्दोबदल रिकॉर्ड किया गया। करेला 20 रुपए महंगा होकर 130, जबकि गाजरें 10 रुपए सस्ती होकर 60 रुपए किलो रही। सब्ज मिर्च 5 रुपए किलो महंगी होकर 120 रुपए किलो हो गई। बैंगन 25 रुपए से बढ़कर 75, गोभी 80, शिमला मिर्च 30 रुपए कम होकर 220 रुपए रही। टैक्सिंग में भी फल सब्जियों के नर्ख ऊपर नीचे। टमाटर की कीमत 45 रुपए से बढ़कर 180 रुपए किलो तक पहुँच गई। प्याज की कीमत 140 रुपए पर बरकरार रही। लहसुन 40 रुपए इजाफे के बाद 660 रुपए किलो हो गया। सब्ज मिर्च की कीमत 45 रुपए कम होकर 125 रुपए किलो रही। करेला 40 रुपए महंगा होकर 140, गोभी 20 रुपए बढ़कर 90 रुपए रही। केला 10 रुपए महंगा होकर 125 रुपए दर्जन रहा। के महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए इकदाम। फैसलाबाद डिवीजन में 70,000 से जायद कमर्शियल जायदादों के मालिकान को टैक्स अदायगियों के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर असमत की रिपोर्ट में। महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मुतहरिक 70,000 से ज्यादा अफराद को टैक्स जमा करवाने के परवाने जारी कर दिए गए। नोटिस पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का फैसला। तमाम नादहिंदगान की जायदादें सील, बड़े डिफाल्टर्स के खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी करवाया जाएगा। एक्साइज हुकाम के मुताबिक रवा माली साल के टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए तमाम तर वसाइल बुरुवेकार लाए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में बेनामी जायदादों और असासों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए ऐलान करदा एंटी बेनामी एडिशनल जोन के मंसूबे पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। FBI हेडक्वार्टर की जानिब से जगह का तयन, फंड्स की फराहमी या मुलाजमीन समेत किसी भी मामले के लिए कोई इकदाम न किया जा सका। मज़ीद तफसीलात उमैर अजमत की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में एंटी बेनामी एडिशनल जोन के क्याम का मंसूबा सिर्फ कागजात तक महदूद होकर रह गया। एडिशनल एंटी बेनामी जोन का ऐलान तो किया गया, मगर FBI हेडक्वार्टर की जानिब से जगह का तयन और फंड्स की फराहमी के लिए कोई इकदाम न किया जा सका। स्पेशल जोन में किसी मुलाजिम की तैनाती भी न हो सकी। 2 साल कबल बेनामी जायदादों और असासों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए एडिशनल एंटी बेनामी जोन की मंजूरी दी गई थी। FBI हुक्काम के मुताबिक एंटी बेनामी जोन के क्याम की मंजूरी हेडक्वार्टर की जानिब से दी गई थी, ताहम फंड्स न मिलने की वजह से मंसूबा इल्तिवा का शिकार हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि झंग फेस्को की नाअहली मौत जमीन से 1.5-2 फीट की दूरी पर रेल बाजार, फूलवाला चौक, मेन बाजार समेत मुतअद्दिद मार्केटों में बिजली की लटकती तारें खौफ की अलामत बन गई हैं। दुकानदार और शहरी परेशानी से दो चार हैं। फेस्को इंतजामिया को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज की इस रिपोर्ट में। फेस्को की नाअहली ताजरों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। शहरियों के सर पर खतरात मंडराने लगे। बिजली की लटकती बेहंगम तारों के बायस शॉर्ट सर्किट और आग लगने के मुतअद्दिद वाकयात रूनुमा, मगर महकमा फेस्को की रिवायती सुस्ती बरकरार। ताजरों की जानिब से दी गई मुतअद्दिद दरखास्तें रद्दी की टोकरी की नजर हो गयी। हर वक्त डर ही रहता है इस चीज का। एक तो ये कि देखें आप, तारे आपके सामने ओपन है, हर चीज इसकी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है किसी टाइम भी, यानी डर ही रहता है इसका। तो
हुकूमत से इल्तिजा भी है, अपील भी है, इसका कुछ ऐसा किया जाए ना कि मतलब ये कवर हो जाए। ताजरों का कहना था कि फेस्को इंतजामात करने की बजाय टाल मटोल से काम ले रही है। हादसा से बचने के लिए बेहंगम तारों का मुस्तकिल हल किया जाए। हर वक्त जो से ना काम खराब हो जाता है, बिजली जो से ना आग लग जाती है, स्पारिंग होती है, ऑटोमेटिक जो है ना 20-20 मीटर लगे हुए हैं, इसको चेनिंग की जाए, हर खंबे पे लगे हुए हैं। ताजरों और शहरियों की जानिब से आला हुकाम से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। अब आपको बताएं, टोबा डेक्सिंग 327 जिम बे भलीर का पार्क तफरीह के बजाय जहनी अजियत का बाइस बनने लगा। सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात पार्क से अब तक सूरत हाल बुरी है। देर का पार्क इंतजामिया अफसर शाही की भेंट चढ़ गया। अमला पार्क की हिफाजत में सुस्ती बरतने लगा। सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात पार्क पुरफिजा माहौल की बजाय ताफुन फैलाने लगा। शहरी भी फट पड़े, बोले पार्क में घास तक मौजूद नहीं, पौधे मुनासिब देखभाल न होने के बायस सूख चुके हैं, बच्चों के लिए एक झूला तक न लगाया जा सका। इंतजामिया पार्क की बहाली के लिए इकदाम उठाए। हमारा ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह है। यहाँ तो हम ज़्यादा घास वगैरह भी नहीं है बैठ सकें और बेंच वगैरह भी नहीं है। बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है जब इस रोड से आते हैं। तो हमारी इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि इसे जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि पार्क में घास लगाई जाए, झूले और बेंच नस्ब किए जाएं ताकि पार्क की खूबसूरती में इजाफा हो और शहरी लुत्फ अंदोज हो सकें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा डेक्सिंग। अब आपको बताएं, जंग सदर चौक से मदो की मोड़ तक सीवरेज लाइन का मिसिंग लिंक लगाते ही 3 माह से जायद का वक्त गुजर गया, मगर अहम तरीन कारोबारी मरकज में सड़क की बहाली ताहाल मुमकिन न हो सकी। म्यूनिसिपल कमेटी की कोशिशों से पीटर इंजन हटाकर सीवरेज लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ा गया, मगर सड़क की बहाली की राह में फंड्स की कमी आड़े आने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोबा रोड से गुजरा रोड की जानिब सेवरी लाइन का मिसिंग लिंक लगाया गया, मगर इस सड़क की बहाली ना हो सकी। मद्दू की मोड़ टोबा रोड से सदर काली चौक तक सड़क खुदाई के बायस टूट फूट का शिकार है। एमसी ने 3 माह कबल सेवरी लाइन डाली, मगर सड़क की बहाली के लिए फंड्स ना मिल सके। टोबा रोड पर भी लगाया गया कट भरा न जा सका। टोबा आने जाने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गयी, जिस पर शहरियों ने अफसोस का इजहार किया है। यहाँ जो भी आया है ना, उन्होंने ये उखाड़ के फेंक दिया। पहले वहाँ गटर था, अब ये गटर, अगर आप कैमरे वाले से कहें तो ये दिखा सकते हैं, इसकी ढक्कन जो है वो नशाई लोग ले जाते हैं। शहरियों ने कहा कि अहम तरीन लिंक रोड मट्टी और मलबे का मरकज बनी हुई है, जिसकी बहाली की फौरी जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। जबकि दूसरी जानिब फैसलाबाद इंतजामिया ने शहर को बेयारो मददगार छोड़ दिया। कहीं ट्रैफिक सिग्नल खराब तो कहीं वन वे की खिलाफ वर्जी। अरूज पर सिग्नल गैर फाल होने से ट्रैफिक जैम, शहरी दिन भर ख्वार होते रहे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हादसा का भी सबब बनने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बागे जनाब मोड़ सरगोदा रोड पर ट्रैफिक सिग्नल गैर फाल। सिग्नल खराब होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से शहरियों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। निशाताबाद पुल के दोनों तरफ में वन वे की खिलाफ वर्जी अरूज पर शहरी मन मर्जी से गाड़ियां गुजार रहे हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरियों का सीटीओ फैसलाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा। ये 2-3 महीने से बंद है और अभी टाइम देख रहे हो 6:30 हुए हैं और अभी काफी रश है और रात को काफी ज्यादा यहाँ पर हादसा होते हैं। एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, खिलाफ वर्जी करते। उधर यू टर्न है जी, उधर दी आन सड़क इधर पुठे पासे दी आ रहे हैं, होनी चाहिए वापस ड्यूटी पुलिस वाले। गैरफाल ट्रैफिक सिग्नल और वन वे की खिलाफ वर्जी से शहरियों को ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल का सामना है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद कामरान के साथ अली हैदर भुट्टा, सिटी 41 फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल ने दरियाए चनाब के मकाम पर पिकनिक पॉइंट्स का दौरा किया। वाटर स्पोर्ट्स, फनलैंड पार्क और दीगर फलाही काम जल्द शुरू करेंगे। तफसीलात वकार घुमन की रिपोर्ट में। कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने दरियाए चनाब, पुल चनाब, रेल ब्रिज का दौरा किया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना मोहम्मद उमर, असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान, चीफ ऑफिसर बल्दिया मुजफ्फर बेग भी हमरा थे। सफीउल्लाह गोंदल का कहना था कि चिन्योट दरिया, पहाड़, सहरा, जंगलात का बेहतरीन इम्तजाज है। शहरियों के लिए दरियाए चनाब पर जल्द पार्क बनाए जाएंगे। वाटर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, रेस्टोरेंट के मंसूबे भी जेर गौर हैं। ये बहुत ही खूबसूरत इसकी टोपोग्राफी है, दरिया भी है और साथ बाकी पहाड़ भी इसके हैं, तो उसको बेसिकली फैमिलीज के लिए डेवलप किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको पता है कि पहले हमारा यहाँ पर एक चनाब पार्क और टीडीसीबी का सेटअप है, लेकिन इसमें बेसिकली जो कमी मुझे फील हुई है वो ये है कि यहाँ पर प्रॉपर फन लैंड होना चाहिए, फैमिलीज यहाँ पर आए, अच्छा रेस्टोरेंट होना चाहिए, उसका व्यू जो है वो दरिया की साइड पे होना चाहिए।
दरियाई चनाब फैसलाबाद डिवीजन के शहरियों के लिए बेहतरीन पिकनिक पॉइंट होगा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ फकार गुमन सिटी 41 न्यूज़। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि फैसलाबाद रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अल खिदमत फाउंडेशन का बच्चों के लिए फन गाला का एहतमाम। 1500 से जायद यतीम बच्चों को झूलों मैजिकल शो के जरिए तफरीक फराहम की गई। लीगी MPA कुदसिया बतूल डायरेक्टर अब्दुल्ला मुदस्सिर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तफसीलात मरियम रजा की रिपोर्ट में। फैसलाबाद रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और अल खिदमत फाउंडेशन के इश्तराक से 1500 यतीम मस्कीन बच्चों के लिए फन गाला का एहतमाम किया गया। बच्चों के लिए मुनफरिद झूले, मैजिक शो और खाने पीने के स्टॉल सजाए गए। मेडिकल कैंप और दीगर सहूलियात भी फराहम की गयी। इस मौका पर डायरेक्टर अब्दुल्ला मुदस्सिर और दीगर मेहमान गरामी की शिरकत। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ये खासा है कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 4 सालों से रिफा के तलबा और तालिबात फैसलाबाद डिवीजन के जो यतीम बच्चे हैं, बच्चियां हैं और उनकी माओं की हिम्मत बढ़ाने के लिए और उनको ये पैगाम देने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, उनको यहाँ हम रिफा यूनिवर्सिटी में जमा करते हैं और यहाँ पे उनके लिए एक ऑर्फन फन गाला का एहतमाम किया जाता है। MPA कुदसिया बतूल कहती हैं, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनके लिए काम करने की सख्त जरूरत है। अल खिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स भी फन गाला जैसी तकरीबात का इनेकाद करने के लिए पुरअज़्म। इन बच्चों के साथ, इन मुस्कुराते चेहरों के साथ आज इस इवेंट को इसमें मैं शामिल हुई हूँ तो मैं यकीन जाने के दिल से खुशी है और दुआ गो भी हूँ रिफा यूनिवर्सिटी के लिए, उसके पूरी टीम के लिए। मतलब बंदा पहले ही इतने ट्रॉमा में होता है तो उससे निकलने के लिए हम ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। बेशक एक दिन के लिए करवाते हैं लेकिन एक मैसेज देने के लिए करवाते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कि वो भी एक दिन का ऐसा कोई इवेंट अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं और इन बच्चों को दे सकते हैं। डायरेक्टर ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम फैसलाबाद डॉक्टर अब्दुल जब्बार अब्बासी भी तकरीब में शरीक हुए। कैमरामैन शाजिब अली के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में स्मोग ने जहां मामलात जिंदगी पूरी तरह मुतासिर किए, वहीं खेलों के मैदान भी वीरान हो गए थे। स्मोग छटते ही मैदान दोबारा आबाद होना शुरू हो गए। खेलता पंजाब के तहत डिवीजनल सतह पर खेलों के मुकाबलों का आगाज कल होगा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जहरीली फिजा के खौफ से मुलतवी किए गए प्रोग्राम दोबारा शुरू होने लगे। मैदानों की रौनकें भी बहाल, खिलाड़ियों ने कमर कस ली। खेलता पंजाब के तहत मुकाबले कल से शुरू। कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेप बॉल क्रिकेट के होंगे तगड़े मुकाबले। इफ्तिताही तकरीब हॉकी स्टेडियम मदीना टाउन में मुनक़िद की जाएगी। खेलता पंजाब के तहत मुकाबले हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद, अल-फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और क्रिसेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक़िद होंगे। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41 फैसलाबाद। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।